Hello and welcome to everyone present here. As students, you already know that I had already begun the lesson resource and development. And first of all, I had discussed with you the meaning of resource and development and also the types of resources according to different cases. In second video lesson, I had discussed about the meaning of sustainable development, resource planning, and also I had discussed about the land as a resource, land use pattern in India, and conservation of. Now, today we will discuss about the soil as a resource. So it is quite important topic today we are going to discuss. Here we will discuss about the soil formation process and the types of soil available in India, and also the soil erosion and conservation of the soil. So four major topics we will discuss here. First of all, we have to get clarification about the meaning of soil as a resource. So naturally, soil is the uppermost layer of the earth which supports the plant life, and we think it as a granted. We think that soil is such a resource which are available in abundance, and we don't adhere to its erosion and its conservation planning, because it is utmost availability of the soil on this earth that we don't take it seriously. But you will be quite amazing to know the fact that it takes millions of years just to formation of 1 inch thickness of the soil. आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मिट्टी की 1 सेंटीमीटर मोटी परत बनने में लाखों साल लग जाते हैं. But it takes 1 hour heavy rainfall to wash away that uppermost soil of a given region. लेकिन मिट्टी की 1 इंच मोटी परत बनने में जो लाखों साल लगते हैं, उसको बर्बाद होने के लिए, उसका इरोजन होने के लिए 1 घंटे की मूसलाधार बारिश काफ़ी है. वो उसे बहाकर लेकर चली जाती है. और दिस इज द importance of soil resource, that how it takes long time its formation, but it's nearly takes hours to get eroded. So we will also discuss all about this, but first of all get clarification of the meaning of soil as a resource. Soil is much important to the humankind because all types of plant lives is dependent upon it, and germination and growth of all seeds and plants, total natural vegetation depend on the soil, and soil also supports the food grain plants, and even it is the storehouse of food grain. So soil is quite important and resource to us, and the earth surface, the motherland earth, we know it is also due to soil. सॉइल के कारण ही, मिट्टी के कारण ही धरती को माता कहकर बुलाते हैं, क्योंकि इसी मिट्टी से अन्न की उपज होती है और अन्न हम लोग खाते हैं, सारी मनुष्य जाति खाती है, और सॉइल से ही पेड़ पौधे और वनस्पतियां होती है जिसे जीव जंतु भी खाते हैं. तो टोटल एनिमल्स, मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द सॉइल. सो it is not astonishing to say that soil supports the survival of humankind. मनुष्य के जीवन का आधार सॉइल है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब कितना भी विज्ञान की तरक्की कर लें, अभी हम अनाज ही खाते हैं और वो फूड ग्रेन्स हमारे सॉइल से ही आता है. सो इन दिस context we may have the importance of soil, that how much important resource it is, although we don't take it seriously and think it is available in abundance. But today we will discuss about importance and its types in India. Let us see. The uppermost layer of the earth's crust, which is loose, broken and useful for plant, is called soil. तो soil की एक सिंपल सी यहाँ परिभाषा दी गई है कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होता है, जो लूज होता है, मतलब जो भुरभुरा होता है, ढीला होता है और प्लांट्स ग्रोथ के लिए उपयोगी होता है, उसे सॉइल कहते हैं. सॉइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स मैटर सच एज सैंड एंड क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमस, बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म्स. तो सॉइल जो है एबायोटिक और बायोटिक दोनों मटेरियल के फॉर्मेशन से बनता है. इसमें सैंड और क्ले जो मतलब रॉक से आते हैं, और ह्यूमस, बैक्टीरिया जो बायोटिक साइड से आती है,
इनके मिलने से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है. Soil is formed mainly due to the process of weathering, but soil formation is a long process, and the chunk part of it's the majority of material which is responsible for the formations of soil is hard rock, कड़ी चट्टान. ईच सॉइल फॉर्मेशन का कारण होती है. सॉइल जो इतनी भुरभुरी और क्लेई होती है, इतनी चिकनी और मिट्टी और मुलायम होती है, ये कड़ी चट्टानों से टूटकर बनती है. और कड़ी चट्टानों को टूटने की प्रक्रिया जो होती है लाखों करोड़ों साल में होती है, और इसके लिए एक नेचुरल प्रोसेस जिम्मेदारी से वेदरिंग कहते हैं. तो वेदरिंग इज द प्राइम फोर्स which is responsible for the formation of soil. So soil is formed mainly due to the process of weathering. As a result of weathering, a layer of loose rock materials is formed on the land surface. तो weathering के process मतलब कि जलवायु, मतलब जलवायु माने हवा, पानी, तापमान, वर्षा, इसके प्रभाव से लाखों करोड़ों साल में जो कड़ी चट्टान है धीरे 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 कमजोर पड़ करके टूट के बालू के कणों में बदल जाती है और सरफेस पर पड़ी रहती है. इफ दिस लेयर रिमेन्स अनडिस्टर्ब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, केमिकल, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज टेक प्लेस इन इट. दिस चेंजेस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. तो जब लाखों करोड़ों साल में कड़ी कड़ी चट्टानें धीरे 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 कमजोर होके क्रैक्स पड़ के उसमें और उस जब बालू के कणों में बदल जाती है तो इसे ही वेदरिंग कहते हैं. और फिर ये जब वो बालू के कण वहाँ हजारों लाखों साल तक पड़े रहते हैं तो फिर उसमें कुछ केमिकल, फिजिकल, ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं और उसमें रॉटन पार्ट्स ऑफ plants and animals is mixed, which is called humus. Then ultimately it turns into the soil. Factors which influence the soil formation process, those there are 4 factors which determine the formation of soil. सॉइल किसी भी इलाके में किस तरह का सॉइल होगा, किसी भी इलाके में कैसा सॉइल मिलेगा, कैसे उसकी बनावट होगी, कैसा उसका रंग होगा, कैसे उसकी फर्टिलिटी होगी, ये 4 फैक्टर्स पर निर्भर करता है. फर्स्ट फैक्टर है क्लाइमेट. क्लाइमेट डिसाइड द रेट ऑफ वेदरिंग एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सॉइल जो है वो पेरेंट रॉक से बनता है, मतलब रॉक, कड़ी चट्टान ही इसका मुख्य मटेरियल है. तो वो कड़ी चट्टान किस तरह से धीरे धीरे टूटेगी, कितने सालों में टूटेगी, तो ये वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करता है. अगर हार्श क्लाइमेट होगी, टू मच हीट, टू मच कोल्ड का वहाँ पर डिफरेंसेस मिलता होगा इस इलाके में, तो वेदरिंग प्रोसेस ज़्यादा फास्ट होगा और सॉइल चट्टान जल्दी जल्दी टूटेगी. और उस इलाके में वेजिटेशन की अवेलेबिलिटी कितनी है उससे उसमें सॉइल फॉर्मेशन में ह्यूमस की मात्रा भी निर्भर करेगी. तो क्लाइमेट से वेजिटेशन भी डिपेंड होता है. अगर एरिड इलाका होगा तो वहाँ क्लाइमेट, अगर एरिड होगा तो वहाँ वेजिटेशन ही नहीं मिलेगी. तो क्लाइमेट डिसाइड्स 2 थिंग्स, फर्स्ट द रेट ऑफ वेदरिंग एंड सेकेंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. And rate of weathering depends in how much quicker span of time the hard rocks get turned into the small sandy particles, and only turning into the sandy particles is not going to be called it as a soil unless and until the humus gets mixed up with it, and the humus is the rotten parts of plants and animals, and the plants availability will depend also on the climate. So first of all, climate will decide the rate of weathering and type of vegetation in any area. Second, topography, भूमि की बनावट. Whether the land is mountainous, whether the land is plainy, whether the land is plateau, वो कैसा इलाका है, स्लोपी इलाका है कि समतल इलाका है. मैदानी इलाका होगा तो समतल इलाका होगा, पहाड़ी मतलब माउंटेनस या प्लेटू रीजन होगा तो ढाल वाला होगा. तो it depends topography that at how much duration the accumulation will soil will stay at one place, and it will retain the capacity of humus in itself. तो अगर वो ढलवे स्थान पर मिट्टी बनेगी तो वहाँ पर पानी और वर्षा से उसको बहकर नीचे जाने की संभावना रहेगी, तो फिर उसमें सड़े गले अंश ह्यूमस धीरे धीरे मिलेंगे, तो फिर वहाँ सॉइल फॉर्मेशन जो होगा वो स्लो होगा. तो सॉइल फॉर्मेशन जो है वो वहाँ की भूमि की बनावट पर भी है कि वहाँ की जो सॉइल होगी उसकी थिकनेस क्या हो, थिन लेयर होगा कि थिक लेयर होगा. इट डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द एरिया. सो टोपोग्राफी इज द नेक्स्ट फैक्टर.
Third, because weathering process, after weathering process, the sandy particle has to stay at one place for lakhs and crores of years. Then some physical, chemical, and mechanical process take place, and the rotten parts of animals and plants gets mixed up. Then it turns into the soil. So slope will determine at the how much longer duration the weathered rocks will be staying at that place, because weathering is the first stage of the soil process, formation process, and after weathered rocks get accumulated at one place for a longer duration, then it turns into the soil which supports the plant life. For this purpose, mixing of humus is quite important. Third is nature of parent rocks. So I have already told you the raw material from which the soil is formed is rock. So the composition and the texture of soil will depend upon the parent rock. किस चट्टान से टूटकर ये soil बन रहा है, उसके रॉक्स पर ये निर्भर करता है. अगर वो सैंडी, कहने का मतलब कि वो ग्रेनाइट रॉक्स है, बेसाल्ट रॉक्स है, या मतलब आपका सैंड स्टोन है, जिस तरह के इस वहाँ का चट्टान होगा उसी तरह से वहाँ की मिट्टी के कणों की बनावट और उसका कलर निर्भर करता है. जैसे ब्लैक सॉइल है, अब डेक्कन प्लेटू रीजन इंडिया मिलता है, वो बेसाल्ट रॉक के टूटने से बना है. बेसाल्ट रॉक काला होता है, मैग्मा का फ्लो से वो बना है, तो इसीलिए वो काली मिट्टी बनी है. vegetation is quite important for the humus availability in soil. तो humus की मात्रा soil में कितनी उपलब्ध रहेगी ये vegetation से निर्भर करेगा. So there are four factors. First is climate, it will decide the rate of weathering and type of vegetation. Second is topography, it will decide the accumulation of soil for one place. The third is nature of parent rocks, it will decide the composition and texture of soil. And the fourth one is vegetation, it will decide the availability of humus in the soil. मिट्टी में कितना humus होगा वहाँ vegetation मतलब. Types of soil. So today we will discuss soil resource in India and how many types of soils are found in India. We know here it is written that there are 6 types of soil in India. First is alluvial soil, second is red soil, third is black soil, fourth is laterite soil, fifth is desert soil, and sixth is mountain soil. So according to the texture, color, and process of formation, the soil in India has been divided into 6 types. रंग के आधार पर, कणों की बनावट के आधार पर, उसके मतलब फर्टिलिटी के आधार पर भारत में 6 प्रकार बांटा गया. First, here you may see the distribution of soil in India. Dark green area, this is the area of forest soil, and light green area, here it is the middle plain of India, major physical division of India. This is the plainy region of India, भारत का मैदानी इलाका. It is formed by the 3 river system, Indus, Ganga, and Brahmaputra. This is the region of alluvial soil. Reddish color, eastern and southern India, you see this is the area of red soil. This is the area of Deccan Plateau, and here we find the black soil. This is the yellow color area, Rajasthan and Gujarat. This is the area of arid soil or sandy soil, and in some spots you see here, this is the area of laterite soil. So one by one we will discuss all the soil. First of all, we will discuss about the alluvial soil. Alluvial soil is the most fertile and widespread soil found in India. तो alluvial को जलोढ़ कहते हैं हिंदी में. जल के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी को ही alluvial soil इंग्लिश में कहते हैं. जल मतलब मिट्टी जो है वो नदियों के द्वारा बहाकर लाकर, पहाड़ी इलाकों से बहाकर लाकर मैदानी इलाकों में बिछा दी जाती है, तो उसे ही alluvial soil कहते हैं. और भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी यही है, और सबसे ज़्यादा विस्तारित मिट्टी, सबसे ज़्यादा फैलाव इसी मिट्टी का है. It is formed due to the deposition of fine silt called alluvium brought by the rivers. तो इसमें मिट्टी के बारीक कण नदियों द्वारा बहाकर लाए जाते हैं ऊपरी इलाकों से, और नीचे मैदानी इलाकों में बिछा दिया जाता है, जिससे ही alluvial soil का निर्माण होता है. It is found in the northern plains, गुजरात प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स. तो इंडिया में आप देख सकते हैं ये लाइट ग्रीन इलाका है, ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में, जिसको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये आपका ब्रह्मपुत्र का आसाम तक का इलाका में ये हमारा
एलुवियल सॉइल मिलता है। और ये कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन डेल्टा ऑफ गोदावरी कृष्णा कावेरी एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी मिलता है। तो और थोड़ा सा ये गुजरात की नदी है, यहाँ लूनी नदी बहती है, तो इस इलाके में भी थोड़ा सा मिलता है। तो मेनली इट इज फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इन 3 रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, एंड coastal plain of India. It means eastern coastal plain and western coastal plain and deltas of the river. It is consist of sand, silt and clay. तो इसमें बालू के भी कण, महीन मतलब कण और क्ले इसमें मिलता है। इट इज डिवाइडेड इनटू खादर एंड बांगर। इसको 2 टाइप्स में डिवीजन किया गया है, ओल्डर एलुवियम कह सकते हैं और न्यूअर एलुवियम। तो ओल्डर एलुवियम को बांगर कहते हैं और न्यूअर एलुवियम को खादर कहते हैं। इट कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स सच एज पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। इसमें कुछ उपजाऊ तत्व मिलते हैं जिसे पोटास, फॉस्फोरिक एसिड ये सब मिलता है। देखिए प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, उसको 3 एलिमेंट चाहिए, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। खेतों में हम जितना भी खाद यूज करते हैं, देखने में तो खाद सफ़ेद दिखाई पड़ता है, लेकिन उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। मेनली 70% तक उसमें नाइट्रोजन होता है, फिर पोटास और फास्फोरस होते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो है नाइट्रोजन वायुमंडल से डायरेक्टली ले नहीं सकते हैं, इसलिए खाद के रूप में ये देना पड़ता है। क्योंकि वायुमंडल में गैस में तो नाइट्रोजन एबंडेंस है, सबसे ज़्यादा एबंडली अवेलेबल गैस कौन है? नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, बट प्लांट कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली। तो प्लांट का जो सबसे मुख्य भोजन है नाइट्रोजन है, उसके बाद पोटास है एंड फास्फोरस है। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स पोटास और फास्फोरस मिलते हैं। इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड ग्रोथ ऑफ शुगर केन, राइस, व्हीट एंड पल्सेस। तो गेहूँ, चावल, दालों की खेती महत्वपूर्ण है। डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर, तो ओल्डर एलुवियम इज नोन एज द बांगर एंड न्यूअर एलुवियम इज नोन एज द खादर। बांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, कंपोज्ड ऑफ ओल्डेस्ट एलुवियम। तो यहाँ पर बांगड़ जो होता है, ओल्डर एलुवियम को कहा जाता है कि मतलब वहाँ अब नई मिट्टी आकर नहीं बिछ रही है। नई मिट्टी नहीं आने से वो पुरानी मिट्टी, लाखों करोड़ों साल पुरानी मिट्टी पड़ी हुई है, उसे हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, इसलिए वो मिट्टी पुरानी पड़ी हुई है, तो उसे बांगर कहते हैं। ओल्डर एलुवियम इज कॉल्ड बांगर एंड न्यूअर एलुवियम इज कॉल्ड खादर। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स, दे रिजेंबल टेरेसेस। तो बांगर में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, क्योंकि बाढ़ के सहारे ही हर साल नई मिट्टी आती है मैदानी इलाकों में, तो इसलिए ऐसा ये बाढ़ से ऊपरी इलाकों में मिलता है। और दिस रीजन इज न्यूड एवरी ईयर ड्यू टू फ्लड। तो हर साल बाढ़ में मिट्टी, नई मिट्टी यहाँ आकर बिछती जाती है, तो इसलिए खादर जो है ये न्यू फर्टाइल है, न्यू एलुवियल सॉइल है और इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। The soil of this region is locally known as कंकड़ and is composed of calcareous deposit। तो बांगड़ जो है बहुत काफ़ी पुरानी हो चुकी होती है और उसको लोकली कहीं कहीं कंकड़ भी कहते हैं। इसमें कैलकेरियस डिपोजिट भी मिलते हैं और ये बहुत इसमें कल्चर के लिए खादर जो है एलुवियल सॉइल कहते हैं। ईच ईयर न्यू लेयर ऑफ सॉइल इज डिपोजिटेड हियर। हर साल बाढ़ में यहाँ नई मिट्टी बिछ जाती है, इसलिए इट्स फर्टिलिटी वेरी हाई एंड यूटिलाइज फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। गहन कृषि के लिए इसका यूज किया जाता है। इट मीन्स इन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड द हायर एंड हायर प्रोडक्शन इज ऑब्टेन ऑफ द फूड ग्रेन्स। तो छोटे से भी जमीन के टुकड़े पर ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपजाने की जो कृषि की पद्धति है उसे ही इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं। So here 3 differences we studied: older alluvial banger, newer alluvial khadar. Older alluvial the flood water doesn't reach, so it's remain older, and newer alluvial flood water reach every year and new layer is deposited, so its fertility is very high. Locally it is known as calcareous kankad, and it is very suitable for intensive agriculture. Next one is black soil. नाम से ही पता है, कलर इसका आप देख सकते हैं, काला है, ब्लैक है, और इसका जो पेरेंट रॉक है वो मतलब बैसाल्ट चट्टान है। बैसाल्ट चट्टान से ये टूट टूट कर धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल में बनी है, इसलिए इसका रंग काला है। ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, इसका नाम रेगुर मिट्टी भी है। इट इज बेस्ट सुटेड सॉइल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। इस सॉइल का पहचान इंडिया में क्यों है? क्योंकि कॉटन की खेती के लिए इसकी बहुत ही नाम है, इसका फेमस है। रेगुर मीन्स कॉटन, रेगुर के नाम से ही स्पष्ट है, कॉटन, बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज ऑक्युपाइड बाय ब्लैक सॉइल। तो इंडिया में आप देख सकिए डेक्कन प्लेटू है, ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का इलाका है।
डेक्कन प्लेटू कहलाता है, इस इलाके में ये सॉइल पाई जाती है। सेल्फ फ्लोइंग इफ इज a characteristic of this black soil as it develops wide cracks when dried। जब ये मिट्टी सूख जाती है तो इसमें बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं और ये खुद इसमें हवा भर जाती है और इसकी खुद जुताई हो जाती है। तो सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। तो जब ये भींगी रहती है, गीली रहती है, तो काफ़ी चिपचिपी होती है और सूख जाने पर ये इसमें सिकुड़ जाती है। लेकिन ये खुद इसमें क्रैक्स पड़ जाने से हवा भीतर तक इसमें चली जाती है। एंड इट हैज़ आल्सो कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। इस मिट्टी में मॉइस्चर को बहुत दिनों तक रखने की क्षमता है। दैट इज वाई इट इज बेस्ट सुटेड फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाशियम, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो बहुत सारे इसमें मतलब एलिमेंट्स मिलते हैं आयरन लाइम से लेकर। डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक कम मिलते हैं। डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक, गहरे काले से लेकर हल्के काले रंग की होती है। इट इज फाउंड इन मेनली डेक्कन ट्रैप रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। दिस इज द ब्लैक सॉइल। Third one is the red soil. As the name suggests, it is due to its color being red. Seen mainly in low rainfall area of eastern and southeastern part of Deccan. ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में ये रेड सॉइल मिलती है। पोरस फ्राइएबल स्ट्रक्चर, तो इसकी बनावट इसमें ऐसे होती है कि इसमें पानी आसानी से भीतर सूख कर चला जाता है। डेफिशिएंट इन लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटास। तो इसमें कमी होती है लाइम की, फॉस्फेट की, मैग्नीज की, नाइट्रोजन की और ह्यूमस की भी इसमें कमी होती है। मतलब उतनी ये फर्टाइल नहीं होती है। कलर रेड कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसमें आयरन और ये जो है मतलब खनिज के डिफ्यूजन से मिलने से इसमें इसका कलर रेड है। द लोअर लेयर इज रेडिश येलो एंड येलो। और इसका जो मतलब निम्न परत है, इसके नीचे जो परत मिलती है रेड कलर, रेड सॉइल के नीचे, उसका कलर थोड़ा येलो इसमें होता है। टेक्सचर, बनावट कैसी है? सैंडी टू क्लेई एंड लूमी। तो ये सैंडी भी होती है, गीली भी होती है और दोमट में भुरभुरी भी होती है। क्लेई मतलब बहुत महीन कण हो, पानी से एकदम गीली हो जाए तो उसे क्लेई कहते हैं। लूमी मने थोड़ा बालू का भी अंश हो, थोड़ा क्ले भी हो तो वो भुरभुरी हो। और सैंडी तो आप जानते हैं बालू ही मिट्टी। वीट, कॉटन, पल्स, टोबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटो आर कल्टिवेटेड। तो इसमें वीट, कॉटन, पल्स की खेती होती है। इट इज फाउंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। नेक्स्ट वन इज लैटराइट सॉइल। ये कंकड़ जैसा दिखाई पड़ रहा है सॉइल। तो नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड लैटर विच मीन्स ब्रिक। इस सॉइल का नाम पड़ा है लैटिन वर्ड लैटर से। दिस सॉइल इज मेनली फाउंड इन hilly region of India where high temperature and high rainfall takes place। तो हिली रीजन में जहाँ पर हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होता है वहाँ ये सॉइल मिलती है, क्योंकि हाई रेनफॉल से लीचिंग प्रोसेस होता है। इस सॉइल का निर्माण होता है, इट इज फॉर्म ए हाई लीचिंग प्रोसेस ड्यू टू। ये लीचिंग प्रोसेस क्या है? लीचिंग प्रोसेस होता है क्या है कि जब खूब बारिश होती है तो स्लोप के सहारे जो फाइन क्ले होते हैं, सॉइल के महीन कण जो मिट्टी के होते हैं, वो बहकर पानी के साथ चली जाती है और फिर मोटे मोटे कण रह जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मोटे मोटे कण हैं, कंग्लोमरेट की तरह है, कंकड़ की तरह है। तो इसीलिए दिस सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू लीचिंग प्रोसेस इन हाई रेनफॉल एरिया इन द हिली रीजन्स and it is fine is pockets। आप देख सकते हैं। organic matter of soil will be removed fast by the bacteria as it is high temperature and humus will be taken quickly by the trees and other plants। तो thus humus content is low। तो इस soil में आप यही इतना ही जानिए कि humus content काफ़ी low होता है। rich in iron and aluminium, इसमें भी आयरन और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें भी नाइट्रोजन, पोटास और पोटेशियम की कमी होती है। राइस, रागी और शुगर केन और कैस्यू नट्स, तो काजू की खेती के लिए, शुगर केन की खेती के लिए, राइस की खेती के लिए उपयुक्त है। और ज़्यादा ये टी, कॉफ़ी और कैस्यू नट्स के लिए ज़्यादा ही उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी ढालों पर ये मिलती है। एरिड सॉइल, सूखी मिट्टी। एज द नेम सजेस्ट, इट इज सैंडी सॉइल
सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन, तो वे उसी इलाके में मिलते हैं जहाँ की जलवायु क्लाइमेट कैसी है, एरिड है, सेमी एरिड है। डिपोजिटेड मेनली बाय विंड एक्टिविटीज, इस मिट्टी का विस्तार ज़्यादा मतलब विंड एक्टिविटीज से ही होता है। हाई साल्ट कंटेंट, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस, इसमें भी मॉइस्चर और ह्यूमस बिल्कुल नहीं होती है। कंकड़ एंड इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज हाई विच रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, तो इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट रहते हैं जिससे कि पानी का बहाव मतलब इन्फिल्ट्रेशन होता है, इसमें अच्छा से नहीं हो पाता है। नहीं, आपका कंकड़ और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज हाई विच रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। टेक्सचर इसका बनावट जो होता है सैंडी होता है। कलर इसका रेड और टू ब्राउन होता है। फाउंड मेनली इन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान और पार्ट्स ऑफ गुजरात में ये मिलता है। फॉरेस्ट सॉइल, एज द नेम सजेस्ट इट इज मेनली फाउंड इन फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया में, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया हिमालय रीजन्स में ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा है, तो इस इलाके में जाती है। फॉरेस्ट सॉइल आर फॉर्म्ड इन फॉरेस्ट एरिया वेयर सफिशिएंट रेनफॉल अवेलेबल, तो फॉरेस्ट एरिया भी होना चाहिए और सफिशिएंट रेनफॉल भी होना चाहिए, उसी इलाके में ये मिलती है मिट्टी। द सॉइल वेरी इन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म, तो उस पर्वतीय इलाके का कैसा इन्वायरमेंट है उसी के आधार पर मिट्टी की बनावट डिपेंड करती है, उसका कण डिपेंड करता है। दे आर लूमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स, तो पहाड़ी ढलानों के निचले इलाकों में, घाटी वाले इलाकों में ये मतलब सिल्टी होती है, लूमी होती है, गीली भी होती है, दोमट भी होती है, लेकिन ऊपरी ढलानों में जो है ये इसके मोटे मोटे कण होते हैं, ये कोर्स होती है। It is snow in the snow-bound areas of Himalayas. They experience denudation and are acidic with low humus contents. तो हिमालय रीजन में जहाँ पर मतलब ग्लेशियर ज़्यादा मिलते हैं वहाँ इस मिट्टी का डिनोडेशन होता है, मतलब क्षय होता है, और वहाँ इसकी फर्टिलिटी कम होती है, ह्यूमस भी कम होता है। तो सॉइल फाउंड इन द लोअर वैली आर फर्टाइल, इन पहाड़ी के नीचे ढलानों में ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। सॉइल इरोजन, so what is the meaning of soil erosion? We have already come to know that soil formation is a very long process and it takes millions of years. ऐसा कहा जाता है कि मिट्टी की एक इंच मोटी परत बनने में 7 से 10 लाख साल लगते, तो it is a natural process. Soil formation is a natural process, but many natural and human activities are also responsible for soil erosion. सॉइल इरोजन है कि मतलब मिट्टी अपनी जहाँ पर है वहाँ से उसकी उड़कर या बहकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, वहाँ पर वो रहे नहीं, तो उसको सॉइल इरोजन कह सकते हैं। या फिर उसमें आपका पॉल्यूटेंट मटेरियल मिला दिया जाए तो उसको भी सॉइल इरोजन कहते हैं। तो ह्यूमन एंड नेचुरल बोथ आर, ह्यूमन एंड एक्टिविटीज एंड नेचर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन। Here we will first see the meaning of soil erosion. Removal of topsoil from one place to another by natural agencies like wind, water, glacier is known as soil erosion. It is caused mainly by running water, wind and glacier. तो मिट्टी की ऊपरी परत का अपने एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ाकर या बहाकर ले जाने की प्रक्रिया को ही सॉइल इरोजन कहते हैं, और इसमें सहायक होते हैं पानी, विंड और ग्लेशियर। ह्यूमन एक्टिविटीज का जहाँ तक सवाल है तो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा पशु की चराई, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति मतलब ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से भी मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, डिप्लीटेड हो जाती है। तो मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म होना भी एक तरह से सॉइल इरोजन है। जैसे पंजाब और हरियाणा इलाकों में बहुत मिट्टी में अब सैलिनिटी आ गई है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ही आपका फर्टिलाइजर का यूज हुआ है। तो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर मेथड responsible for the large scale soil erosion including mining activities, और mining activities से भी soil का erosion होता है। Here we will study two types of soil erosion. अब मिट्टी का जो परत है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे हट जाता है, गली इरोजन एंड सीट इरोजन। गली इरोजन, जब मिट्टी नलिका के सहारे, छोटी छोटी नालियों के सहारे, नलिकाओं के सहारे जब वहाँ से उखड़कर बहकर दूसरी जगह चले जाता है तो उसे गिली रीजन कहते हैं। द रेन वाटर, इट इज मेनली डन बाय रेन वाटर। द रेन वाटर व्हेन मूव्स डाउन ऑन एन अनइवन लैंड scoops away the soil from deep channels called gillies. These types of erosion is called gilly erosion. तो the rain water when moves down on an uneven land, जब किसी उबड़ खाबड़ जमीन पर, ढलुआ जमीन पर जब वर्षा का पानी बहता है
तो क्या होता है कि वो मिट्टी को वहाँ से स्कूप करके उखाड़ करके वहाँ से छोटे छोटे नालियों के माध्यम से लेकर दूसरी जगह चला जाता है, इसे गिली इरोजन कहते हैं, और इस टाइप के इरोजन को गिली इरोजन ही कहा जाता है। तो रेन वाटर when moves on slopy land or uneven land, it scoops away the soil from the area through the deep channels, that is known as gilly erosion. A land which is broken into many small parts by this gilly is called badland. और जिस इलाके में बहुत सारे गिलीज का निर्माण हो जाता है वो इलाके को बैडलैंड कहते हैं। और आप चंबल का नाम सुने होंगे, बीहड़, चंबल का बीहड़, तो वहां पर ये गिली इरोजन के चलते बीहड़ का निर्माण हुआ। ये बैड लैंड इज अनफिट फॉर कल्टिवेशन, और ये कल्टिवेशन के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं। सीट इरोजन, परत क्षरण, मैंने मिट्टी की परत ही मैंने उड़कर या बहकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाए। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज ए सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप, दैट the water takes away the topsoil. This type of erosion is called sheet erosion. तो कभी कभी पानी किसी इलाके में एक सीट की तरह, एक परत की तरह, मतलब वो मिट्टी के ऊपर से बहता है और अपने साथ मिट्टी को बहा कर लेकर चला जाता है, उसे ही सीट इरोजन। तो लार्ज स्केल सॉइल इरोजन ये सीट इरोजन है। जो मैदानी इलाका है वहाँ पर सीट इरोजन ही होता है, वहाँ पर पानी ऊपर से बहते रहता है और धीरे धीरे मिट्टी को वहाँ से हटाते जाता है, तो एक सीट की तरह मिट्टी वहाँ से हट जाती है। This is called seat erosion. Soil conservation. What are the techniques and methods which may helpful for the conservation of soil? मिट्टी को बचा कर रखना है, क्योंकि मिट्टी अगर बर्बाद हो जाएगी तो फिर इसे हम फैक्ट्री में नहीं बना सकते हैं। ये ऐसा रिसोर्स है जो नेचुरल प्रोसेस से ही बनता है और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसमें लगता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो वी हैव टू protect the soil because it is supports all natural vegetations and even the food grains plants, which is the base of human survival and other kinds of all animals on this earth. So this gives us the idea how much important is the soil. So what are the things which we can be done for the soil erosion? कंटूर प्लॉइंग, सबसे पहले पहाड़ी इलाकों में कंटूर प्लॉइंग करनी चाहिए, समुच्चय कृषि करनी चाहिए। प्लॉइंग अलोंग द कंटूर लाइंस कैन बी एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। तो पहाड़ी इलाकों में होता क्या है कि मिट्टी व्हेन द वाटर फ्लोज अलोंग द स्लोप इट्स टेक अवे वाश अवे द सॉइल वेरी स्पीडली। अगर मिट्टी ढाल के सहारे, अगर ढाल के सहारे पानी बहेगी, वर्षा का पानी हो तो वर्षा का ही पानी होता है मेन, तो ढाल के सहारे बहेगी तो अपने साथ मिट्टी को बहुत तेजी से आसानी से बहा कर लेके चली जाएगी, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अगर वर्षा मतलब पानी के फ्लो को ही स्टॉप कर दिया जाए, धीमा कर दिया जाए, तो वो फिर इतनी आसानी से मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा सकती है। तो अगर पहाड़ी इलाकों में गोल गोल समुच्चय खेती की जाए, गोल गोल बनाकर मेड़ मेड़ की खेती की जाए, आप देख सकते हैं, तो फिर ऊपर से पानी जो आएगा फिर उसको मेड़ रोक देगी, तो फिर उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड कंटूर प्लाइंग। तो कंटूर प्लाइंग एक गोल गोल बना मिट्टी को, मतलब पहाड़ के चारों तरफ गोल गोल कंटूर प्लाइंग की जाती है, और ये restricts the flow of water, which ultimately helps in the soil conservation. So plowing along the contour lines or contour plowings help in the slowing down the flow of water in along the slopes and restricts the washing away or flowing away soil along with the water fast, and it helps in the conservation of soil. टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती। सीढ़ी नुमा खेती क्या है? ये भी एक पहाड़ी इलाकों में ही किया जाता है, ढलानों पर किया जाता है। इसमें भी यही मेथड अप्लाई किया जाता है कि पानी का जो फ्लो है वो स्लो हो जाए। स्टेप्स कैन बी कट ऑन अलोंग द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। तो ढलानों पर छोटे छोटे सीढ़ी जैसे खेत बना दिए जाते हैं, और स्लोप्स मतलब उसको इजिली नहीं अवेलेबल होता है पानी को, पानी धीरे धीरे एक स्लोप से दूसरे स्लोप, दूसरे स्लोप से तीसरे स्लोप पर धीरे धीरे आता है, इसलिए उसका स्पीड स्लो हो जाता है और का कटाव भी धीरे धीरे होता है, इसलिए सॉइल कंजर्वेशन होता है। तो फर्स्ट इज कंटूर प्लाइंग, सेकंड इज टेरेस फार्मिंग। इट आल्सो हेल्प्स टू स्टिक द सॉइल इरोजन। थर्ड इज स्ट्रिप क्रॉपिंग, पंक्तियों में खेती, लंबी लंबी पंक्तियों में खेती की जाए। लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। तो
strips of grass are left to grow between the crops. This breaks up the force of wind. This method is called strip cropping. तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि पहले तो फसलों को भी लंबी लंबी पंक्तियों में बोया जाता है और फिर दो फसल वाली खेतों के बीच में घास को इसी तरह से छोड़ दिया जाता है स्ट्रिप में उगने के लिए, और वो विंड के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करती है, धीमा करती है, जिससे कि आपका सॉइल इरोजन नहीं, क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट removing away the topsoil of any area from one place to another place by help of wind, water or glacier is known as soil erosion. And last is shelter belt. So shelter belt is planting of trees in a long row and it's create a shelter given reason. तो किसी भी इलाके में जब हवा तेज बहती हो, खूब मतलब तेज वहाँ हवा चलती हो, तो उस इलाके की मिट्टी को उड़ा कर ले जाके जा सकती है। तो शेल्टर बेल्ट लगाने से, लंबे लंबे पंक्तियों में पेड़ लगाने से वो हवा के बहाव को धीमा करती है। और इस तरह के शेल्टर बेल्ट आपको इंडिया में राजस्थान में बनाए गए हैं कि राजस्थान इलाके से बालू को उड़ा उड़ा करके दूसरे जो पंजाब हरियाणा इलाका में है वहाँ अच्छी जगहों पर बालू न चला जाए, वहाँ की मिट्टी को न ढक ले, तो शेल्टर बेल्ट बनाए जाते हैं। और इसने बहुत हेल्पफुल किया है इंडिया में, राजस्थान इलाके में जो सैंड ड्यून्स है, बड़े बड़े बालू के टीले हैं, उसके गति को धीमा किया है, जिससे कि चलते भी सॉइल इरोजन नहीं। सो इन दिस वे वी कम टू नो अबाउट द soil as a resource, its different types in India, and the factors for the soil formation, and the meaning of the soil erosion, and different methods of the soil conservation. So in this way we got some idea about the soil as a resource. It is very important resource, and we come to know many things about this, and I think you might have understood some idea you might have got from this lesson. Okay, thank you to all of you.